Good morning, students. Now, today we are going to take a full fledged next topic, that is Company Act. So, in business law, this act has a very important and essential meaning because without completing this act, we cannot able to understand why business law paper is being taught in the management courses. Management courses like BCom, BBA, or it could be MBA. So, Company Act defines the scope and the importance of business law in the formation of the company. Let me introduce to the topic. The importance in the formation of the company means that without which you cannot form a legal entity. So, what do you mean by legal entity? A legal entity is an authorized and the significant platform from where you can start your work. So, work is like business, work is like service sector, or you can open the hospital industry also. It could be a manufacturing company also, it could be a software and training skills also. But before moving further, it is very important to know that one should know how to start a company, how we can register our company. A company can be registered either by a person, as we know the definition of the company speaks. The company can be a firm, entity, business, or an organization. So, if a person is whole solely running a business, like YouTubers, like many of the YouTubers having their own and separate account, even they have created their account in the name of their children also. So in this case, the particular account is a person. The person is only running that particular account. He is putting their videos and they are earning a huge amount out of that. Now, the next example of an organization such as Tirthankar Mahavir University. The third, it could be a manufacturing industry like Moffitt, Britannia, Dukes, or Parley. Next, it can be an automobile sector like Tata and Mahindra, or it can be a service sector like hospitals, Apollos, and etc. So, a business can be in any form. The form doesn't matter right now because we are entering into the word of registering the company. Clear to everyone? So it is very important to understand what a company means and how we can register a company. I will give you a practical example also. I will show you the site also where you can enroll your firm and what are the different documents are required for registering a firm. So in this unit, we will be covering a basic topics of the companies that is being required. So before studying this topic, I would like to tell you that Company Act has been amended right now. This is also a very new amendment and previously we have many acts, but I will be moving with this act because it contains the glimpse of the older and the enhancement of the newer one. Okay, so Company Act 2013, you should remember the year also because in law it has a very importance that you should remember the year also. Okay, the Company Act 2013 regulates the formation and the function of the corporation of companies in India. We are only talking about the companies in India. For an example, HUL, हिंदुस्तान यूनियन लीवर, ओके, ये हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा. There are many companies that are running business in India, but they are not the native companies, they are the guest companies. कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं बेटा जो होम होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि होस्ट होती हैं, या फिर हम उनको फॉरेन कंपनीज की तरह भी डील कर सकते हैं. अब हम इनको कैसे डिफाइन करते हैं?
हमको बेसिकली यहाँ पे ये चीज अभी समझ लेनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा है कंपनीज इन इंडिया। इंडिया में आप बहुत तरीके से कंपनीज लॉन्च कर सकते हैं। नाउ इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ अ होम कंपनी, लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ अ हमदर्द। इट्स अ वेरी ओल्ड कंपनी हमदर्द आपके जो है, और ये बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जैसे कि रूह अफ़ज़ा, आप लोगों ने डील भी करा। ये आ गया आपका डन। ये इनकी इक्वेशंस दिखा रहे हैं। हमको और कुछ नहीं देखना है, हमको बस बेसिक प्रोडक्ट्स देखने, जिससे कि जिन स्टूडेंट्स के लिए ये नया टॉपिक है वो इमीडिएटली इसको रिलेट कर पाए कि हाँ ये हमने देखे हैं और ये हमने अपने टाइम में यूज भी करे। These are the huge range of the products served by the हमदर्द कंपनी। ये बहुत ओल्ड एग्जाम्पल लिया है मैंने आप लोगों के सामने, अगर जिन्होंने ये देखे हैं तो उन्हें याद होगा कि ये इस तरह से रन करते थे। अभी आप अच्छा रिसेंट एग्जाम्पल ले सकते हैं RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप RIL का एग्जाम्पल लीजिए, RIL आपकी अपनी है, यहीं से शुरू है, यहीं के लोगों ने शुरू करी है ना। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं RIL। ये हो गई आपकी HUL, आपका नाम यूज करती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर आपका नाम यूज कर रही है, पर आपकी है नहीं। ब्रिटानिया सबको लगता है कि इंडिया की है, नहीं है इंडिया की। नेस्ले इंडिया की नहीं है, स्विट्जरलैंड में हेड ऑफिस है। पार्ले जी, अगर कभी आप पार्ले जी के विजिट पे गए हैं तो आपको पता चलेगा कि पार्ले जी जो थी जब स्टार्ट हुई तो एक पर्सन थे जो इंडिया आए थे शिप से, और इन्होंने देखा कि यहाँ पे तो कुकीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब इन्हें लगा कुकीज का कॉन्सेप्ट नहीं है और हमारे में तो बहुत कुकीज बनती है, एन नंबर ऑफ कुकीज आर देयर। तो इन्होंने इंडिया में फर्स्ट टाइम बिजनेस सेटअप करा। लेकिन देखिए ट्रिकीनेस क्या है, जो पर्सन का बिजनेस स्टार्ट करी है वो हमारा नहीं है। तो दिस इज अ वेरी ट्रिकी पॉइंट कि जब वो हमारा नहीं है तो नेटिव वो नहीं हुए। डन। ऐसे ही नेस्ले है बेटा, नेस्ले हमारे शेयर मार्केट में भी आपको दिख जाएगी, यू कैन परचेज द शेयर ऑल्सो ऑफ नेस्ले, पर नेस्ले हमारी नहीं है। क्लियर। अगर आप बात करते हैं फॉर एन एग्जाम्पल IFB के इंडिया में इतने सेंटर्स हैं, IFB हमारी नहीं है, तो शिवा हमारी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सोनी की तो सोनी हमारी। तो इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी एंड फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। यू मस्ट गो थ्रू द लिस्ट ऑफ द कंपनीज और अपने मन में पूछिए कि जॉनसन एंड जॉनसन बहुत शुरू से देखते आ रहे हैं, बहुत छोटे थे हम लोग, अब तो देखिए बहुत सारी कंपनीज आपको दिखने लगी है, बोट दिखने लगी है, फ्लिपकार्ट दिखती है, आपने शार्क टैंक में विनीता को देखा होगा जो शुगर चलाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग आप लोग को दिख रहे हैं। ओयो के मास्टर्स जिन्होंने स्टार्ट करा था वो आए थे शार्क टैंक में। तो ये सब लोग जब आ रहे हैं तो ये अपनी थ्योरीज आपको बता रहे हैं, दे आर टेलिंग यू योर थ्योरीज कि कैसे हमने बिजनेस स्टार्ट करा, एंड यू नो दैट कि दे आर द पर्संस फ्रॉम द इंडिया इटसेल्फ। ये लोग कहाँ से उठे, ये इंडिया के। तो ये वो कंपनीज है जो आपके सामने है, आपको पता है कि इंडियन कंपनीज ही। लेकिन क्वेश्चन कहाँ पे अराइज होता है, आप बहुत देर बैक चले जाइए और फिर सोचिए कि आप छोटे थे तो आप जॉनसन एंड जॉनसन यूज करते थे। जॉनसन एंड जॉनसन किसका ब्रांड है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का ब्रांड है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हमारी नहीं है। तो हमको इतना रिवर्स ऑर्डर में जाके बात करनी है, क्योंकि एक कंपनी के अंदर सेवरल ब्रांड्स हो सकते हैं, सेवरल। अब हमको ये थॉट प्रोसेस लाना है कि वेदर द पर्टिकुलर कंपनी हमको बिलोंग कर रही है या नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल यू वेंट टू पेंटालून्स,
अब नाउ पैंटालून्स में बहुत सारे ब्रांड्स आपको सर्व किए जाते हैं। पैंटालून्स में सिर्फ और सिर्फ इंडियन ब्रांड्स ही नहीं है, दे आर सर्विंग द फॉरेन ब्रांड्स ऑल्सो। बट पैंटालून्स खुद अपने में आपकी बिरला ग्रुप का, बिरला ग्रुप आप रिलायंस के, आपने एजियो से शॉपिंग करी, ये आपके, आपने कहा चलो ट्रेंड्स, ये आपका। लेकिन अगर आप ट्रेंड्स गए और आपने ट्रेंड्स में जाके लुई फिलिप्स की कोई ट्राउजर खरीदी तो अब वो आपकी नहीं है। तो ये हमको सेग्रीगेशन करना पड़ता है मन में। बार बार अपनी कंपनी को रिपीट करिए। एक वीक में आप लोग जितने भी प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, सारे प्रोडक्ट्स को अच्छे से देखिए और फिर ये एनालाइज करिए। एक कॉपी में ले लीजिए, टेक अ कॉपी पेन एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द कंपनीज व्हाटएवर प्रोडक्ट्स आर यूजिंग यू आर इन अ डे। फॉर एग्जांपल आप उठिए, आपने कोलगेट से ब्रश किया, अब आपको थॉट मन में आना चाहिए कि कोलगेट किस कंपनी का है। कोलगेट तो प्रोडक्ट का नेम है बेटा, वो तो एक टूथपेस्ट है। नाउ यू मस्ट रिकॉल कि वो किस कंपनी का, कंपनी का नाम देखिए उस पर मेंशन है। आप बताइए कि वो कंपनी आपकी है या नहीं। फिर यू स्टार्टेड टेकिंग अ बाथ और आपके पास फॉर एन एग्जांपल पतंजलि का स्टोर है। अब आप बताइए कि पतंजलि आपका है या नहीं। आप पतंजलि इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। सारे बच्चे मुझे फोन पे मैसेज करके बताएंगे। My number is 9720083334 and the hint is कि पतंजलि जिस ट्रस्ट पे बनी है वो फॉरेन ट्रस्ट है। And this is a very tricky question. You need to study a full case. And if you are sending me the request, then I will surely send you the case study also of the Patanjali. कि पतंजलि की कैसे रिजेक्शन हुआ था और फिर उन्होंने कैसे एक फॉरेन सोसाइटी बनाई और कैसे फॉरेन सोसाइटी को एक्सेप्टेंस मिला और आज उस पे पतंजलि चल रही है। अब बिकॉज रामदेव बाबा हैज डन ऑल द एफर्ट, इट डजंट मीन कि सब कुछ आपका। मेट्रो स्टेशंस ढूंढ के बताइए, जस्ट सर्च है किस मोड पे काम कर। सो कमिंग बैक टू द एग्जांपल्स एंड कमिंग बैक टू द डेफिनेशंस, What we can see कि हमें यह आइडेंटिफाई करना है कौन सी हमारी है और कौन सी हमारी नहीं है। The first Company Act after the independence was passed in 1956. So अगर आप गूगल पे जाएं और सर्च करें कंपनी एक्ट 1956 तो आपको प्रॉपरली ये पूरा एक्ट मिल जाएगा। क्लियर ना। कंपनी एक्ट 1956, दिस इज वेरी इनिशियल एक्ट। ये तब बना था बेटा जब इंडिया में कंपनीज बनना शुरू ही हुई थी, स्टार्टिंग ही हुई थी। सो उस टाइम पे कंपनी एक्ट बना था। सो विच गवर्न्स द बिजनेस एंटिटीज इन आवर कंट्री, ये किसको गवर्न करता था, बिजनेस एंटिटीज हमारी जो कंट्री में अवेलेबल है। In 1956, Company Act was based on the recommendation of Bhabha Committee. Now, Bhabha Committee is also a very important topic. Now, what do you mean by this committee? ये एक सेंट्रल कमेटी थी बेटा जो कि साउथ में चीजों को एक्सपोर्ट करती थी। आप इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री पढ़िएगा, बहुत पुरानी हिस्ट्री। देन यू केम टू नो कि इन्हें ये समझ में आया कि बिफोर डूइंग एनी बिजनेस, बिफोर डूइंग एनीथिंग, I must have some common rules and regulations to perform. So they have recommended that there must be a proper act for the formation of the company. अब एक्ट में बहुत बार चेंजेस आ चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स द एक्ट हैज बीन चेंज्ड, बट इन द ईयर 2013 there is a proper and a major change. The change was introduced in the section 135 and 135 section क्या शो करता है, corporate social responsibility. So this is mandatory. This is mandatory in the eyes of the law. Okay. So now what do you mean by CSR?
नाउ व्हाट इज CSR? बिकॉज अगर ये वर्ड आया और हमने इसको अभी यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. दिस इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. This is what? This is corporate social responsibility. And now what corporate social responsibility does? क्या करती है ये? अब आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, यू आर रनिंग अ बिजनेस. अब आप बिजनेस चला रहे हैं तो आपका प्रॉफिट होगा. आपका प्रॉफिट होगा तो आपने प्रॉफिट कहाँ से लिया? उसमें एम्प्लॉयज हैं, स्मॉल वर्कर्स हैं, उसमें सोसाइटी है, सोसाइटी में जो रिसोर्सेज है वो आपने शेयर करे. क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं बेटा? वाटर, एयर, एंड व्हाट एल्स? इलेक्ट्रिसिटी. ओके, आपने बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करे टू रन द बिजनेस. आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आपकी कुछ अर्निंग हो जाए तो आप इनको बेनिफिट्स दीजिए. So that they are also getting benefited and you are also getting benefited. Tata, Google are the examples of best CSR practices. Okay, so in this manner we can able to understand why CSR is very important. CSR is very very important. Without having a CSR activity, your credit goes down. If you want to get settled in the eyes of law, in the eyes of person, in the eyes of care, ये सब क्या है? हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है. अगर किसी का छूट गया है, दीज आर द रेटिंग एजेंसीज. रेटिंग एजेंसी फॉर व्हाट? योर क्रेडिट. यहाँ पे योर का मतलब क्या हुआ? योर का मतलब हुआ कंपनी. क्लियर? तो अगर आपको इनके लिए बेहतर बनना है, आपको लोगों के सामने अपनी इमेज को बेहतर बनाना है, सो दैट पीपल कैन ट्रस्ट यू, पीपल कैन हैव फेथ इन यू, वो आपको गुड फेथ में ले, आपको अपना CSR बेटर करना ही पड़ेगा. विदाउट दिस ये पॉसिबल नहीं है. Clear? Now, why it is important to better the CSR? Why CSR is very important for each and every company? So this is also a very important topic कि हम क्यों करें, हम जो कमा रहे हैं वो हम दूसरों को वापस क्यों करें? क्यों ऐसा हम करें कि हम जो कमा रहे हैं वो अपने लिए क्यों ना रख लें, हम दूसरों को क्यों दें? हम कुछ भी कर रहे हैं, पेड़ भी लगा रहे हैं, तो हम दूसरों को क्यों दें? अब आप देखिए, आप बेटा रोड्स पे ट्रेवल करते हैं, मॉल्स बनते हैं, फॉर द सेक ऑफ द डेवलपमेंट ब्रिजेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, प्लांट्स आर बीइंग कट डे बाय डे. ओके, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ रुद्रपुर. रुद्रपुर इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट. So if you go through the case study of Rudrapur, Sidpul, Udham Singh Nagar, Uttarakhand, so you will able to know that Rudrapur is a forestry area, jungle था, and the all roads has been cutted down, each and everything has been managed, और वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल सेक्टर क्रिएट करा गया named as. अब प्लांट्स कटे,
पहले आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों करा मैम इंडस्ट्रियल एरिया, क्यों? बिकॉज ऑफ द सेक ऑफ द एनवायरमेंट. उत्तराखंड, you know that उत्तराखंड is a hilly area, it's a tourist place. फैक्ट्रीज नहीं है वहां, तो फॉर द सेक ऑफ द एम्प्लॉयमेंट की पब्लिक आए, नॉन स्टेट्स उतरे, एंड द रुद्रपुर इज द फर्स्ट प्लेस विच हैज अ प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ लैंड जहां पे कंपनीज स्टैब्लिश हो सकती थी. सो दे हैव डिसाइडेड रुद्रपुर टू गेट द इंडस्ट्रियल एरिया नोन एज सिडकुल. अगर आपको जरा सी भी दिक्कत हो ढूंढने में, then you can search the Pantnagar University also. Pantnagar University is a central university and a very wide university. And among students, they are very known to us. ये उसी सिटी की बात. क्या प्रॉब्लम आई? उन्होंने पेड़ काटे, डेवलपमेंट करा, इट हैज अ ह्यूज डेवलपमेंट, और जितने भी ट्रीज प्लांट करे वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में करे. Now you should go and search the figures of Pithoragarh. Pithoragarh is a deep forest area. It doesn't need any plantation. It is a chilly, hilly, and a cool place. It has a raining strength also, a high raining. So, it is not at all required. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CSR एक्टिविटी तो कर दी, बट द एक्टिविटी इज यूजफुल और नॉट? नो, एक्टिविटी इज नॉट एट ऑल यूजफुल. आपको ऐसा लगता है कि यू आर हैविंग अ ह्यूज पॉल्यूशन. इफ यू फील दैट यू आर हैविंग अ ह्यूज पॉल्यूशन, so let me give you the glimpse of London street. Now and almost 100 years before. Let me give you a clip. You can just search London in 1800 pollution. See, what are the images? It has a huge pollution rate. Huge pollution rate. But if you look London right now, आप कुछ लोग यहाँ मास्क लगाए हुए दिख जाएंगे. ये देखिए, people are wearing mask. They are traveling on road and they are wearing mask. इतना ह्यूज पॉल्यूशन था. इतना ह्यूज पॉल्यूशन था. ये देखिए, आप फैक्ट्स पे जाइए. बट नाउ हम ये वर्ड हटा दें. अब लंदन कैसा? अब लंदन में पॉल्यूशन नहीं है. लंदन की स्ट्रीट्स की अगर आप फोटो देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अब लंदन में पॉल्यूशन नहीं है. कैसे करा? हाउ दे हैव डन दिस? हर कंपनी पे चेक लगा कि यू आर अर्निंग समथिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट, यू आर क्रिएटिंग अ रिसोर्स फ्रॉम द एनवायरमेंट, सो यू हैव टू गेट बैक समथिंग टू द एनवायरमेंट. कुछ ना कुछ आपको रिटर्न करना है. एंड यू मस्ट चेक योर पॉल्यूशन ऑल्सो. पॉल्यूशन चेकिंग शुड बी देयर. Century pulp and paper, have you seen that A4 size paper? वो कहां से आता है? उसका प्लांट कहां है? आपको स्टडी करी है आप लोगों ने कभी? दैट इज कमिंग फ्रॉम लाल कुआं. कहां से आता है? लाल कुआं. नाउ द हिस्ट्री एंड द साइंटिस्ट बोथ हैज प्रूवन कि लाल कुआं में जो लोग सेंचुरी पल्प एंड पेपर में रहते हैं, दे आर हैविंग
very itching and the sensation in their eyes, high rate of itching and sensation, they are getting bleeds, गंजे हो रहे हैं, they are having a serious throat cancers because Century Pulp and Paper is not taking a proper care of the pollution. Century Pulp and Paper pollution के लिए बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा. So let me give you the glimpse of this also, जिससे कि आप स्टूडेंट्स बिल्कुल इमीडिएटली रिलेट कर पाए. लाल Century Pulp and Paper, problems to people. आपको बहुत सारी वेरियस रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, वेरियस रिपोर्ट्स. आप इसे सर्च करिए, इसके बारे में पढ़िए, तो आपको ये समझ में आए कि कंपनी अंदर से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है कि एम्प्लॉइज कैसे हो. ये वहां मीटिंग हुई थी, उसका इन्होंने डाला हुआ है सारा. सेंचुरी पल्प एंड पेपर, अगर आपको ये साइन याद हो तो यू कैन एबल टू नो कि आप इसके बहुत सारे पेपर्स यूज करें. क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज CSR is important. So importance of CSR is on a huge ground. Otherwise, the whole environment, the whole human being, the whole nature will get affected. Okay, you know the era of COVID. आपको सबको कोविड याद हो, तो अगर आप नहीं भूले हैं तो एक बार दोबारा देखिए. गंगा पिक्स या गंगा इन 2019 हरिद्वार, क्या क्लीन फोटोज है. आप लोग को याद होगा कि कोविड के टाइम पे दिल्ली में जो प्रॉब्लम आई थी वो भी रिजॉल्व हो गई थी. डू यू रिमेम्बर दिस फैक्ट? दिल्ली में जहां पे सब लोग यमुना जी में जाके पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, सो दैट इज अ वेरी फॉगी रिवर. हर साल न्यूज़पेपर में आता है ऑन द डे ऑफ द छठ पूजा. बट इन द ईयर 2019 and 20 the river is clean. Why the river is clean? Because industries are closed. So that is a practical example that industries are keeping their drainage out in the water disposables. वो पानी में डिस्पोज कर रहा है. अब ना water is a very essential element. Your generation require it, we also require it, and your other generation is also requiring it. So this is not a good way to dispose of the pollution from the factories. So CSR activities show us how we can improve our conditions and how we can improve the condition of the society as well as the country, so that if we are growing, our nation should also grow. And if we are growing, our nation should also grow. So in this behalf, moving further, so these are the amendments. But the most important amendment has taken a part in the year 2013. The Company Act was replaced in the 2013 by the Act of 1956. Okay, now what are the basic amendments that is being done? So these are the sections where which the basic amendments has been done. If you are studying in your personal way, if you want to get the notes, तो आपको सारे क्योंकि नोट्स नहीं निकालने हैं, आपको सिर्फ ये सेक्शंस और ये शेड्यूल्स पढ़ने. क्लियर? नाउ इसकी हेल्प से by the chapter 29, section 470 and schedule 7, these are the highlights.
These are the highlights. So what are the highlights? Maximum number of shareholder for the private company is 2000. कितने हो गए ये 200. प्रीवियसली ये कितने थे बेटा 50. अब हम यहाँ पे करते रहते हैं, हम अपनी खुद की टेबल बना लेते हैं और ये चेंजेस हम खुद भी लिख सकते हैं. ओके क्लियर. अब हमारे पास कितने हैं, पहले कितने थे प्रीवियस, यहां पे लिख लेते हैं प्रीवियस, यहां पे लिख लेते हैं न्यू, यहां पे लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. सो प्रीवियस किसी भी कंपनी में जो शेयर होल्डर्स थे वो कितने होते थे 50. अभी कितने की परमिशन है 200. क्लियर. अभी कितने की परमिशन है हमारे पास 200, क्योंकि अब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर मार्केट में और इन्वेस्टमेंट में और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं. सो दे आर बिलीविंग इन दिस. नाउ वी कैन से दैट